My dear students, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point and Ram K Maths. My dear student, this channel is very important and providing you the very important solution of the questions which already asked in the different types of examination. Today I am just going to start the integration by parts, which is the very important part of your integral calculus. And as I have discussed with you that you must have to complete first of all your indefinite integration, then only you will get success in the definite integration. So this integration by parts, this is the topic which is the part of your indefinite integration. Okay, first of all I will tell you product rule of differential calculus. As I have told you already that antiderivative means integration, that is the inverse process of differentiation, and that I have proved in the beginning when I started the indefinite integration. My dear student, today also actually in differential calculus there is a rule of product of two functions, how to find out the differentiation of the product of two functions. Now here there will be the integration by parts, similar kind of thing is there, that I have taken formula. First of all I will tell you the formula, how to get the proof of the formula, that I will tell you, so that you will understand what is the formula of integration by parts. My dear student, before starting this topic, if you are new to my channel, then subscribe my channel, share my videos, like my videos, and press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible, and other student will also be benefited. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. देखिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन. किसका डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. माय डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. My dear student, this is the first function and it will be the second function. First function you keep as it is, derivative of the second function with respect to x. यहाँ देखिए, और plus for second function you keep as it is, derivative of the second function. This is the very important function. My dear student, you must have to see now. I will on both the sides. Integrating on both sides. Integration on both sides. Most important formula I am just going to discuss, my dear student. That is why you see concentrate over here when you will integrate on both the sides like that. Integration or differentiation with respect to x of the product of two functions will be equal to integration of u dv upon dx. My dear student, it will be dx and plus integration of v du upon dx and dx, because I have taken the integration of it. Okay, my dear student, you must have to see this function. I will take this function from the right side to the left side. It will be equal to differentiation. My dear student, whenever integrating, I am just integrating, because integration, that is the inverse process of differentiation. That is why both the symbols are here. That is why it will be removed and it will be equal to what? Product of two functions. It will be equal to u dv upon dx, my dear student, and dx, plus v du upon dx, it will be dx. Okay, my dear student, this one I will transpose from right side to the left side. Then what it will be? It will be u. My dear student, you must have to see, because I am discussing the very important part of it. It will be dv upon dx. It will be equal to, because when it will be from right side to left side, it will become negative. Then it will be equal to what? uv minus v and du upon dx and dx. My dear student, this one I have changed into this form, because I want to generate the formula of integration by parts. Let u is equal to fx. Then what will happen? du upon dx, it will be equal to f dash x. Differentiating it.
माय डियर स्टूडेंट dv अपॉन dx, देखिए इसमें क्या करूंगा, dv अपॉन dx इट विल बी इक्वल टू सपोज gx, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, देन इट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू gx एंड dx। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, मैंने पहले ही बता दिया चूंकि इधर का इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिंपल है, इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट विल बी रिमूव्ड, v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या है, जहां पर v है, wherever it is v I will put this one, wherever it is du upon d I will put this one, wherever it is u I will put this one। okay, let me take my dear student, it will be, देखिए यहां पर it will be, I told you in place of u that is fx, you see carefully this formula my dear student, okay, dv upon dx that is gx and dx, rest it will be dx, dv upon dx it will be gx। my dear student, you got the product of two function, okay, in the left side, in place of u that is fx। my dear student, you concentrate over here, I am just generating the most important formula, in place of v you must have to write this one my dear student, see the value of v that is gx and dx। my dear student, integral of you in place of v my dear student, you see this one, in place of du upon dx that is f dash x, first of all you write f dash x, and after that in place of v you will have to write integral of gx। my dear student, with respect to x, you have generated the formula. What is formula? When product of two functions will be there, how you will have to find out its integration? This will be the first function, it will be second function। first function you keep as it is, integration of the second function minus integral of derivative of the first function, integration of the second function। my dear student, it is the formula of integration by parts। I told you the proof of it, कैसे हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं, कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं, गोइंग टू टेक। देखिए इसमें फॉर्मूला हमारा आ गया फर्स्ट फंक्शन, फिर से बता देता हूं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विल बी देयर while you are going to apply the integration by parts, okay। now first function you keep as it is, integration of the second function minus derivative of the first function, integration of the second function। most important thing my dear student, but it is very difficult to select first function second function। first function कौन सा होगा, second function कौन सा होगा, कैसे आप, how you will apply, how you will find out, how you will apply the formula integration by parts। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए what will be the first function, what will be the second function। my dear student, to facilitate that one I have got one important condition, वो condition मैं बताऊंगा, that is suppose how to, आप चाहे तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, how to apply this formula of as first function for first and second function। how to apply this formula for first and second function, what will be the first function, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं what is the first function in the product, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं in the product of two functions select first and second function। देखिए आप इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, चलिए मैं इसको क्या है, इसको हटा देता हूं यहां से। माय डियर स्टूडेंट, हाउ यू विल सेलेक्ट व्हाट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, व्हाट विल बी द सेकंड फंक्शन व्हाइल यू आर गोइंग टू अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, देखिए ILATE, मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना है आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ILAT। What will be the function, first function? यदि प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में इफ देयर इज द I स्टैंड फॉर, देखिए यहां पे बता देता हूं भाई, इनवर्स फंक्शन होगा तो दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको प्रायोरिटी उसको देनी है। यदि सबसे पहले इनवर्स फंक्शन है दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद किसका नंबर आता है, देखो एल का मतलब क्या होता है,
माय डियर स्टूडेंट, उसके देखिए सबसे पहले इनवर्स और उसके बाद में क्या आएगा, एल। एल होता है लोगरिथमिक फंक्शन। या सपोज इनवर्स फंक्शन नहीं है, लोगरिथमिक फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इन दैट केस, यदि इनवर्स फंक्शन नहीं है। यदि लोगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है तब क्या हो जाएगा, ए। एल्जेब्रिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन। ओके, देखिए इसको देख लीजिए, मैंने केवल यहां पे लिखा है इनवर्स फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। सपोज एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है तो फिर फर्स्ट फंक्शन कौन किसका नंबर आएगा, फिर टी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन। अब देख लीजिए आप लोग, माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। यदि ये आपके याद नहीं रहा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी नहीं है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। My dear student, most important condition I have generated, most important condition. Then only you can find out the solution by applying, whenever the product of two functions will be given, by applying the integration by parts rule. Okay, my dear student, you must have to keep in mind this thing. This is a very very important thing. Let me take the question on depend upon it. देखिए क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका, इवन आईआईटी वगैरह में भी पूछा गया है काफी बार ये क्वेश्चन। लेट मी टेक दैट क्वेश्चन, लेकिन उसमें याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। देखिए मैं भी यहां पे बता देता हूं, क्वेश्चन 1 इवैल्यूएट, उसके बाद आपकी किताब के क्वेश्चन होगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट log x dx. My dear student, only you can applying here integration by parts rule. But it is only one function, it is not the product of two functions. Then how you will, otherwise it will be very difficult to find out its integration. इसीलिए ये कई बार वाइवा में भी पूछा जा सकता है। यदि आप किसी भी कंपटीशन के वाइवा में जा रहे हैं, देन सच क्वेश्चन में भी आस्क्ड। मेरे से भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी देता हूं। जब मैं पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने बोला हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ log x। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, मैंने बताया यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, ठीक है। अब आइलेट को देखिए, आइलेट अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं है ना, आई डोंट नो व्हाट विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड व्हाट विल बी द सेकंड फंक्शन। ओके, बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन हो सकता है, कौन सा सेकंड फंक्शन। बट यू मे कमिट द मिस्टेक। क्या होगा इसमें, देखिए यहां पे मैंने बोला है सबसे पहले क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इसमें है नहीं, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, लोगरिथमिक फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी द फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन थर्ड प्लेस पर है। एल्जेब्रिक फंक्शन विल बी द सेकंड फंक्शन, 1 विल बी द सेकंड। Like that you can select, my dear student. I am telling you the most important thing, my dear student, as per the rule, first function you keep as it is. देखिए फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, इसी के अनुसार बता, मैं आई विल टेल यू। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूं यहां पे x इंटीग्रेशन, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलिए मैं यहां पे इसको, चूंकि पहला क्वेश्चन है, पूरा लिख देता हूं यहां पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, log x का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 1/x, और फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करूंगा dx, तो फिर से क्या होगा, देखो यहां पे मैं बता देता हूं, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x माइनस 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x और dx। My dear student, x log x, x will be conceived by x dx and plus c. My dear student, x log x minus x और plus c. क्या आ गया my dear student, integration of it, integration that will be, you can take x common, x out of it log x minus 1 and plus c.
माय डियर स्टूडेंट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन। और मैंने दोनों चीजें अप्लाई की हैं, जो जो आपको बताई है। आइलेट को भी मैंने यूज किया है और मैंने प्रोडक्ट रूल, whenever the product of the two functions will be given, then how you can find out the integration by parts rule. Okay, चलिए अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन और दूंगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आइलेट को मैंने पहले बता दिया, आइलेट को कहीं पर भी लिख करके रखना है, so that you will be in a position to select the first function as well as the second function. चलिए अब आपकी किताब की एक्सरसाइज लेता हूं मैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट मी टेक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी इंटीग्रेट द फंक्शन। आपकी किताब का क्वेश्चन ले रहा हूं, सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 you will have to see, my dear student, NCERT क्वेश्चन नंबर 1, integrate द फंक्शन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जो कि बिगिनिंग में ये सब समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है भाई, लीजिए x sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है भाई आपको। देखिए x sin x और dx। माय डियर स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मुझे तो पता नहीं है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या होगा। ओके, कहां जाएंगे हम लोग, आइलेट पर। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन है, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ना। एल्जेब्रिक के बाद किसका नंबर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल बी द सेकंड फंक्शन। देखिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर इंटीग्रेशन ले लेता हूं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। चलिए माइनस cos x माइनस, माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, cos x और dx। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस x cos x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और cos x और dx प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन दैट विल बी sin x एंड प्लस c। My dear student, it is very simple to find out the integration of it. Okay, that is why you must have to keep in mind इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप ही की किताब का है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, इट इज 3x ओनली। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, 3x dx इट विल बी सेम थिंग। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और मैं 3x के यहां पर क्या रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, सेम इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, यहां पे क्या रखूंगा 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई हैव डिस्कस ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ax अपॉन a। तो वही मैंने किया है, यहां पे देखिए sin x का क्या होगा, माइनस cos 3x अपॉन 3। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, और यहां पर भी वही क्या होगा भाई, 3x अपॉन 3। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना क्वेश्चन नंबर को, द 1 को मैंने 2 से कोरिलेट करके देखिए, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 3 cos माइनस 3x, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1 अपॉन 3 एंड cos 3x dx। सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, माइनस x अपॉन 3 इनटू cos 3x प्लस 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट, मुझे इसका cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x अपॉन 3 एंड प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस x अपॉन 3 एंड cos 3x एंड प्लस sin 3x अपॉन 9 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग विद यू। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, एंड यू मस्ट हैव टू सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक 3। कौन सा फंक्शन है, इसमें तो मैंने लिया था ना x cos 3x, यहां पर चेंज नहीं किया था भाई। देखिए तो इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया, x sin 3x, x sin
3x। उसका सॉल्यूशन तो ये आ गया ना। ओके, नाउ अभी कौन सा फंक्शन लेना है? क्वेश्चन नंबर 3 में आई विल टेक एक्स स्क्वायर एंड e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए इसको मैं पूरे को रिव्यू कर देता हूं एंड लेट मी टेक इट। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? x टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है, उससे पहले क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, बाकी सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। पहले वाला देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है तो वो उसमें अवेलेबल है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में, तो दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, सेम थिंग। डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम थिंग। माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x माइनस ट्वाइस x इनटू e टू द पावर x dx। देखिए एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन हमको इसका करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फिर आ गया। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, इसलिए मैंने बोला ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मैं यहां पे ब्रैकेट ले लेता हूं क्योंकि नेगेटिव साइन है भाई। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और e टू द पावर x dx। माय डियर स्टूडेंट, प्लस c x टू द पावर 2 e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, माय डियर स्टूडेंट e टू द पावर x और dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, माय डियर स्टूडेंट c। देखिए e टू द पावर x दैट इज कॉमन एवरीवेयर माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 और प्लस c। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन I have taken. This is a very very important question. My dear student, आप लोग YouTube चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट को यदि देखते रहेंगे तो आप यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।